Agricultural Engineering from College of Agricultural Engineering, Division of Agricultural Engineering. He is among the first batch of Agricultural Engineering from Sukovsky. After pursuing his BTech, Dr. Nasir qualified ICR examination for PG and chose MTech in Renewable Engineering. He has also offered fellowship from National Institute of Solar Energy, erstwhile Solar Energy Center, for his MTech and PhD. Dr. Nasir was the first candidate from the background in agricultural engineering to get the National Solar Energy Fellowship from the Ministry of New and Renewable Energy, where he worked on solar biomass hybrid model. He was closely associated with TERI, the Energy Research Institute, New Delhi, in renewable energy-based power generation and cold storage project. He taught SSC in Northern Western Region examination for CTOs in 2015. He was selected as a senior scientist in CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur in 2019 and worked there till 2021 and is currently working at CSIR Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu, where is nodal scientist, multi-core project of CSIR Integrative Skill Initiative. He is also vertical head of waste to energy project at IIM Jammu. He has been associated with several working committees, selection committees, CSIR IIM Jammu, and is also a nodal scientist for Preliminary Affairs Project Monitoring and Regulation. Thank you. Now, for his start over the lecture. Thank you. Thank you, Dr. for a wonderful introduction. So, good morning to all of you. I have done my BTech. It was Division of Agricultural Engineering. So I am a product of this college, and we were the first batch from 2006 to 2010. And then this Division of Agricultural Engineering was situated, I think, in the biotechnology, building. So today I have come here after 13 long years. Once I completed my BTech, I have never been to this place. And all thanks to my colleague and my dear friend Dr. KALAY who invited me for this lecture. The first risk, when I took in my MTech was, I chose renewable energy engineering. So may I know how many students are here who are, pursuing MTech in renewable energy? Only one. And all other students, they are from pharmacy background or? Different backgrounds. We are from information technology. Okay. Computer applications. Okay. So may I have a small introduction, because I would like to connect my lecture with different allied sectors as well. Because once you told me that you are from IT sector, then we can have a small interaction on how we can use IoT, IoT based solar energy systems, programmable solar energy schedule, irrigation schedulers. So we have computer science here, agricultural engineering, and IT, right? Okay, so my topic is based on solar biomass hybrid models for power generation, heating and cold storage. As all of you know that India is basically predominantly an agriculture based country, right? So most of, if you see the economy of our country is based on agriculture only. And in 2019 जब कोविड का टाइम आया, तो एक अजीब सी चीज जो बाहर आई 2019 में, that was how much agriculture is important. Because जब inflation बढ़ रहा था, every sector was in road terms, be it industry, be it any sector, it was only agriculture. जिसने इंडिया को as compared to all other countries इसका GDP steady रखा. So now you can understand how much agriculture is important for our country. When I say that India is predominantly an agriculture-based society, we all know that in terms of agriculture, once we get agriculture produce, वहाँ पे हमारा एक waste बचता है, right? Which is known as biomass waste. So how I am connecting my lecture will be like, all of us, we lay emphasis on only one technology, that is solar photovoltaic. Very important technology, obviously. In recent times, the efficiency of solar panels have increased manifold. But the main problem with renewable energy is storage, right? For example, when I am using a solar PV panel, I am converting light energy into electricity.
but the problem comes with storage, right? Same is the case with thermal as well. Whenever we take any solar thermal technology, be it any type of concentrated solar collectors, there also the main problem comes with storage. And then if we go with this biomass energy, this biomass energy can be used as a hybrid to all energies. And I will also, in my next slide please. Why don't you take it the side? Okay. Okay. So तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स करूँगा. सो मैंने आपको बोला कि हमारे रूरल एरियाज में we have 3 basic problems. Number 1, we have low rural economy, and this is for every part of our country. चाहे हमारा JNK में कोई भी प्लेस, कोई भी विलेज हो, या इंडिया में कोई भी विलेज आप देखोगे हमारी कंट्री में, this is a main problem with village areas that we have a low, very low rural economy. Second, we have electrical energy shortage. I just landed yesterday, to Srinagar में हूँ, and I saw there are certain power cuts. Even then, we talk about smart meters. जब हमने smart meters भी introduce किए हैं अपने यहाँ पे, still we are having power cuts. So I will also, give you a reason for what is happening basically, why these smart meters are not working. तो मैं आपको पूरा वो भी connect करूँगा. Then the third problem is we are having huge post-harvest losses. Now you can see, I was just watching, I think last 2 दिन पहले एक वीडियो हुई थी upload from Hyderabad where some people from Kashmir had gone to watch cricket match, World Cup matches. So they went to market. कोई किसी ने वीडियो देखी वो? Where apple was sold at 150 rupees per kg. देखी किसी ने वीडियो? Okay, that was a viral video. So basically my point is, if अगर हम transportation charges भी add करते हैं, तब भी 150 means a lot. उस हिसाब से हमारे फार्मर को बहुत ज़्यादा फायदा होना चाहिए था. जब हमारे पास मई जून का टाइम आता है, इनफैक्ट मार्च के बाद ही, इफ यू सी मार्च टू अक्टूबर, यू विल सी अगर हम मंडी में जाते हैं, वी ऑलवेज टेक दोस चाइनीज एप्पल्स, राइट? हम देखा होगा चाइनीज एप्पल्स हम लेते हैं, अफगानिस्तान के भी अब एप्पल्स आ रहे हैं, ईरान के एप्पल्स आ रहे हैं, जिनका कॉस्ट 300-400 रुपीज़ पर केजी होता है. तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस वाले सीजन में ये एप्पल्स कहाँ से मिलते हैं हमें यहाँ पे? कोल्ड स्टोरेज, राइट? वहाँ पे क्या है, people have a proper cold storage facilities available in countries में. That's how our horticulture sector can bloom if we will be having these kind of cold storage units. अब बात electricity तक available नहीं है, for common use. We cannot imagine how we can run our cold storages. So here comes the role of an renewable energy engineering. So here's how we can introduce renewable energy in our cold storage units. अब renewable energy को हम कैसे करेंगे introduce in our cold storage units? एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, यानी कि मेरा पूरा जो कोल्ड स्टोरेज है वो सोलर पे चलता है. ठीक, आपको पता है कि इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट वेरीज फ्रॉम 4 to 10 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो 4 to 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि मुझे जो अपना कोल्ड स्टोरेज चलाना है वो मेरा सिंपल वैम या सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन से चलेगा, या अगर हम नॉर्मल में एसी भी यूज करूंगा उससे भी मेरा काम जो है निकल जाएगा कुछ टाइम के लिए, यानी कि वहां पे मुझे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं है. नाउ अगर मैं इसी रिन्यूएबल एनर्जी को उस वाले फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केयर में, हेल्थ केयर में, जहाँ पे मुझे स्टोरेज माइनस में चाहिए, जहाँ पे जैसे हमारा फ्रिज काम करता है, राइट? उस चीज के लिए मुझे स्टोरेज चाहिए. आई नीड ए प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम टू रन दोज काइंड ऑफ कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स. ठीक, उसके बाद आता है मेरे स्टैंड अलोन सिस्टम में क्या है, 100% ऑफ जो है मेरा जो प्लांट है, पावर प्लांट है जो है, दैट विल रन ओनली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सिंस शी हैज बीन माय सीनियर, सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड ही हैज बीन वेरी काइंड टू मी. बहुत ही जो है सीखना है मैंने इनसे, दिलावर साहब से. He has been very kind to me. बस कर दिया है. So okay. So अब जो है stand alone system आपको समझ आया, right? Why we are running a power plant, we are running electricity power generating unit, यहाँ cold storage and 100% energy. अब जैसे हमने पहले ही बोला कि the issue with solar power plant is that storage. अगर हम अपने घरों में भी देखोगे, आप कश्मीर में भी क्या होता है, अभी हम जब आप solar power plant बाहर से खरीदते हो, उसके बाद आपको जरूरी होता है कि you also purchase a battery with it, right? क्योंकि रात को तो सोलर है नहीं आपके पास. We do not have solar available at night. So what we are using a solar power plant with a battery for storage.
So when it comes to photovoltaic, जहाँ हम बोलते हैं photovoltaic की efficiency बड़ी अच्छी है, problem comes with storage unit, ठीक? And then the same problem is with solar thermal as well, because sun आपका जो sunshine hours जो available है वो day time available है, चल रहा है? But I think I'm loud enough. आवाज आ रही है ना आप सबको? टेक्नोलॉजी जो हम रात को यूज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, सो दैट चाहे मेरा कोल्ड स्टोरेज है, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरी इंडस्ट्री है, वो 24 आवर्स चले. व्हाट डू यू थिंक? Combination of solar with यस, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर विद सम अनदर एनर्जी, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी, राइट? अब बेस्ट एग्जांपल, व्हाट कैन बी द बेस्ट रूट एग्जांपल इन केस ऑफ JNK? बताओ. I would like to have a more interactive session with you rather than मैं बोलता रहूँगा, तो because you know since most of you belong to JNK, right? Yes, yes, sir. Okay. बताओ मुझे रात को कौन सी ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी मेरे पास है, अगर मैं उसको यूज करूँ तो जो मेरी बिजली का जो इशू है वो 24 आवर्स खत्म हो जाए विदाउट यूजिंग ए स्टोरेज यूनिट. बताइए. सर आप कंटिन्यू कीजिए, लाइव चल रहा है. Oh, sorry. Okay, so I will tell you. So the next energy, the next form of renewable energy which comes into picture is biomass-based energy systems, right? And you know what? JNK is basically, you know, it's a horticulture-based industry. ठीक है ना? We are not dependent on agriculture. When it comes to agriculture sector, हम हमेशा जो है horticulture को बाहर in relation to other states, हम horticulture को बाहर करते हैं जब हम agriculture की बात करते हैं. But when it comes to states like JNK, Uttarakhand, Uttarakhand, so I think it's okay now. I think that okay. So when it comes to a place like Jammu and Kashmir, right? So we have a biomass here, and you must be knowing अभी जैसे September October का time चल रहा है. What we are doing in our orchards? We are doing pruning. Exactly, we are doing pruning of our horticulture crops, right? And जो हमारा pruned horticulture जो निकलता है हमारे जो निकलते हैं branches, and what we are doing with that? We are doing open burning, right? Kind of an open combustion we are doing. So उससे problem क्या है कि see जहाँ भी आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जहाँ भी आपका ओपन combustion है, वहाँ पे आपकी efficiency जो होती है वो होती है decrease, because आपका जो time लगता है for burning for combustion वो बहुत कम होता है, ठीक है? किसी भी बायोमास बेस्ड इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए we have to make sure कि जो हमारा combustion time है, जो हमारा burning time है, वो हम increase करें, उसको हम prolong करें, right? So that अगर हमारा जो है combustible item कोई भी है, अगर हम उसका हम time of burning, time of combustion बोलो ऑफ, उसको हम increase कर पाते हैं, we will be able to get more energy, right? So, as I told you, in case of Jammu and Kashmir, yeah, in case of any other place where we have enough biomass resources, the best hybridization technology is solar biomass hybrid models, right? And the best part with biomass energy is that you can use any kind of biomass. क्योंकि you must be knowing कि चाहे कोई भी biomass है उसमें calorific value है, right? सब carbon based ही है, ठीक है? So we can use any kind of biomass, and now that will depend upon certain elements like कि उसका calorific value कितना है. For example, in case of leaf, जैसे हमारे पत्ते होते हैं, चिनार के पत्ते होते हैं, we can use them as pellets, we can use them as briquettes. Briquetting का तो पता होगा आप लोगों को ना concept? ब्रिकेटिंग का कंसेप्ट सब पता है ना? What we do, for example, अगर मैं सारे जो हैं हमारे जैसे हमारे अपने इंस्टीट्यूट में क्या किया है, जो भी हमारे कैंपस में नीचे पत्ते गिरते हैं, जो लीव्स गिरते हैं, हमने एक ट्रैक्टर बेस्ड क्या बनाया है, एक काइंड ऑफ
वैक्यूम क्लीनर बनता है। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, वो सक्स करता है, सक्शन प्रेशर होता है उसमें। उसी काइंड का हमने एक अपने यहाँ इंडस्ट्री में लोकली हमने बनाया खुद एक सक्शन टाइप का जो है, जो पीटीओ शेफ्ट से चलता है ट्रैक्टर के, वो सारा एरिया को जो सक करता है, उसके जो लीव्स होते हैं, ठीक। उन लीव्स को मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास एक वहाँ पे श्रेडर है, उन लीव्स को मैं श्रेडिंग करता हूँ। तो श्रेडिंग के बाद क्या होता है, वो टोटली वो जो है स्मॉल उसमें जो है वो हो जाते हैं, एंड देन वो श्रेडेड लीव्स को वी कन्वर्ट इनटू बायोमास ब्रिकेट्स, ठीक है। तो बायोमास ब्रिकेटिंग में क्या फायदा है, जो लूजली पैक्ड आइटम है, जब हमें उसको कंपोस्ट करता हूँ, ये करता हूँ, उसका कैलोरीफिक वैल्यू गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक। तो वंस कैलोरीफिक वैल्यू गेट्स इंक्रीज्ड, दैट कैन बी यूज्ड इन दिस योर सोलर थर्मल या बायोमास बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, दे कैन बी यूज्ड इन हीटिंग, या जो हमारे होते हैं क्या उसको बोलते हैं, ये विंटर में हम जो जलाते हैं हमामस, दैट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज। अगर यहाँ पे कोई उसका एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करता है बायोमास ब्रिकेटिंग का, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, वो पूरे आपके वुड को पूरा चैलेंज कर सकता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हिच यू नो वी कैन डू हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो कमिंग ये ब्रिकेटिंग का थोड़ा सा प्लीज कमेंगे। ओके, बायोमास ब्रिकेटिंग क्या टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो भी लूज बायोमास है, हमें पता है कि जब हम इसको जलाएंगे किसी भी जगह इस लूज बायोमास को, ये मानो हमारा 1 या 2 मिनट में जल जाएगा, राइट, ऑन एवरेज। लेकिन अगर मैं उसके अगेंस्ट एक वुड चिप को जलाऊं या एक वुडन बायोमास को जलाऊं, इट विल टेक सम टाइम, राइट। पेपर को जलाने में इट विल टेक मे बी 2 सेकंड्स, लेकिन वुड को जलाने में इट माइट टेक 2 मिनट्स। सो व्हाट इज द मेन रीजन, डेंसिटी, राइट। तो इसमें बायोमास ब्रिकेटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जो भी लूजली बायोमास होता है, हम उसको पहले श्रेड करते हैं। श्रेडिंग करने के बाद जो हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा मानो इसके एक लूप के अंदर मैं उसको डालता हूँ, देन मैकेनिकली जो है मैं उसको एक्सट्रूड करता हूँ, मैं उसको प्रेशराइज करता हूँ इन एनी फॉर्म, इन मतलब राउंड फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म, जो है वो पूरा कंपोस्ट बन जाता है, पूरा जो है हार्ड बन जाता है, विदाउट एडिंग एनीथिंग ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, हाँ, इट इज कंप्रेस्ड बायोमास, राइट। इस कंप्रेस्ड बायोमास को क्या मैं करता हूँ, फिर इसका ऑब्वियसली कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इस बायोमास ब्रिकेट को अगर मैं, जैसे हम क्या करते हैं, हमारा ब्रिक्स का बड़ा इशू है, जो हम बाहर से कोल मंगवाते हैं, फिर हमारे जो है क्या इसको बोलते हैं, ब्रिक ओवन, क्या बोलते हैं उसको, क्लीन, हाँ सॉरी, ओके। जब हम उसमें जला रहे हैं, एंड आई वाज जस्ट यू नो डूइंग ए मार्केट सर्वे कि ये आता है झारखंड से, बिहार से, यू कैन जस्ट सी द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो उसमें लगते हैं हमें यहाँ पहुंचने तक। उसके बाद उसको जलाने में जो पोल्यूशन होता है, इट इज एनॉर्मस, राइट। और ये बायोमास क्या है, ये कार्बन न्यूट्रल भी है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, वंस दिस बायोमास ब्रिकेट इज यू नो वी कॉल दिस टेक्नोलॉजी एज पायरोलिसिस, कॉल्ड एज गैसिफिकेशन। क्या होता है, हमारा गैसिफायर का कांसेप्ट पता है आपको, मैं आपको समझाता हूँ। बायोमास गैसिफायर क्या है, एक सिंपल सा एक क्या बोलते हैं कि एक अप्लायंस बोलो, एक मशीन बोलो, विच कन्वर्ट्स सॉलिड बायोमास इनटू प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को हम बोलते हैं सिन गैस। उससे क्या हम करते हैं, उससे हम करते हैं प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे होता है प्रोसेस, मैं आपको बोलूंगा। नॉर्मली किसी भी चीज को जलाने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, राइट, बट इन दिस केस एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नो, मुझे लगा था शायद ये सब आपको पता होगा, तो अगर मुझे ये पता होता, बट आई हैव सर्टेन वीडियोस इन माय फोन जहां मैं आपको यू नो आई कैन शो यू वन बाय वन हाउ यू नो कैसे हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम लीव्स फ्रॉम बायोमास। Intentionally this was not brought out because there a lot of things would have then one Exactly. That's also one of the reasons. to bring a lot of things, right? So we have this kind of technology जहाँ पे lack of oxygen करके you know in less amount of oxygen हम पहले एक बायोमास को इसको हम बर्न करते हैं, ठीक। उस बायोमास को बर्न करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे होगी थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बिकॉज एक्चुअली ऑक्सीजन है नहीं, सो इट विल स्लो डाउन। हमाम सिंपल सी मैं आपको कश्मीरी बताऊंगा, हमाम में क्या होता है, हम जब बनाते हैं वहां पे भी तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ही करते हैं, राइट। ऑक्सीजन हम कम देते हैं ना, इस तरह से उसको बंद करते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस, जो हमारे हमाम में जो ये वुड बर्न होता है, इट टेक्स टाइम रादर देन ओपन बर्निंग। So I can call it a kind of pyrolysis, not exactly, technically it's not right, but I can call it a kind of pyrolysis. जहाँ पे क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे मेरा जो बायोमास होता है वो होता है ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट गैसेस, इनटू हमारा जो एग्जॉस्ट निकलता है, और उसके बाद लास्ट में जो मुझे मिलता है वो मिलता है मुझे चारकोल। अगर आपको ये पता है कि सिंस मोस्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर इंजीनियर्स
Do you have any idea the beauty of the charcoal? या चारकोल कहाँ यूज होता है चारकोल बताइएगा? So filtration, fertilizer, as fertilizer use करते हैं, as absorbent use करते हैं. You know what? This अगर आपने देखा होगा जब भी आप बड़े किसी ब्रांड में जाओगे, H&M, Zara या कहीं जाओगे, वहाँ पे अगर आप क्लोथ्स में भी देखोगे ना, वहाँ भी लिखा होता है, एक छोटा सा पाउच होता है हमारे शू में, हमारे कोट में, you know, एक्टिविटी चारकोल लिखा होगा, एक छोटा सा पाउच होता है एक्टिविटी चारकोल. Moisture absorbent. That is moisture absorbent. That's also smell repellent. एक बड़ा अच्छा यहाँ अभी हम जो यूज कर रहे हैं क्या उसको बोलते हैं फेस वॉशेस. अब देखो ना फेस वॉश में लिखा होता है एक्टिविटी चारकोल. हम सोचते हैं क्या है चारकोल से थोड़ा ना कोई अपना चेहरा साफ करेगा. हाउ इज इट पॉसिबल? बेसिकली एक्टिविटी चारकोल ही होता है, ये वही चारकोल है, कुछ और चारकोल नहीं है. सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द चारकोल. ये कितने चीजों में हमें यूज होता है. एंड वन मोर ब्यूटीफुल थिंग इज दैट इफ वी यूज दिस चारकोल इन आवर सॉइल, इट इज ए काइंड ऑफ ए सॉइल सिक्योराइजेशन, जहां जिसको हम बोलते हैं इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि इट कैन बी यूज्ड एज अ मल्च एज वेल. सो सी रिन्यूएबल एनर्जी, मेरा एक्चुअली ये बोलने का एक ही मकसद है आपका. ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप करेंगे वी विल नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से या नॉर्मल पावर जनरेशन यूनिट से हम इसको अगर हम ये टैली करेंगे, we have certain, there are certain laxities, there are certain issues with it, but the best part of renewable energy is cogeneration. So this is a new term for you which is known as cogeneration. Renewable energy चाहे आपका photovoltaic, आपका solar thermal, आपका biomass. I am not taking this ocean, tidal, geothermal, wind because of less scope here in JNK. So I will concentrate on three things: photovoltaic, solar thermal and biomass. And इन तीनों का hybridization और cogeneration कैसे होता है. अब cogeneration क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, मैं फोटोवोल्टेक में क्या होता है, जो मेरी लाइट है गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो फिर एसी डीसी उसके बाद मेरा जो है अप्लायंसेस चलते हैं. लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन इटसेल्फ विल गिव अस टू थिंग्स एंड थ्री थिंग्स. दैट इज इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट कैन बी यूज्ड एज अ हीटर, इट कैन बी यूज्ड एज अ कूलिंग. वी हैव सर्टेन जहां की मैं आपको बताऊंगा, दैट इज सोलर थर्मल. Solar thermal route is best suited for cogeneration because solar thermal एक ऐसा route है जहाँ पे हम we can go with electricity generation, we can go with cold storage, we can go with cooling, room cooling जैसे हम बोलते हैं HVAC systems, हमारे heating, ventilating and air conditioning system जो होते हैं. If you see international countries में क्या होता है, उन्होंने बनाया है solar based ACs. बट सी वहां पर हमारी क्या डिफरेंस है. हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने एक बहुत बड़ा सोलर फोटो वोल्टेक का पावर प्लांट लगाया, ठीक. उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी से मैं एसी चला रहा हूँ. सो दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, राइट. बट थर्मल रूट में क्या होता है, डायरेक्ट सोलर थर्मल से जो है आपका एसी चलेगा. और एसी कैसे चलेगा, वो चलेगा आपके वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल से, ठीक है. जहां पे मुझे पॉजिटिव टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जहां पे मेरी कूलिंग, फॉर एग्जांपल अब मैं रूम में हूं, राइट. सो रूम में मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए इन समर्स, आई विल नीड समथिंग अराउंड 10 to 24 डिग्री सेल्सियस, राइट. वन सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो, जहां पे मुझे टेम्परेचर चाहिए माइनस में, अब इन केस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जहां पे मुझे सर्टेन आप मान के चलो कोई फ्रूट्स या सर्टेन मेडिसिन स्टोर करने, वहां पे मुझे कोल्ड स्टोरेज चाहिए. अब सोलर थर्मल की ब्यूटी क्या है, दोनों के जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है. यानी कि जहां पे मुझे पॉजिटिव टेम्परेचर चाहिए वहां में लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो है मिक्सचर चलाऊंगा इन ए क्लोज लूप सिस्टम. इन नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा. जहां पे मुझे माइनस टेम्परेचर चाहिए वहां पे मैं चलाऊंगा अमोनिया वाटर सॉल्यूशन, राइट. सो लिथियम ब्रोमाइड में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव कूलिंग में मदद करता है, पॉजिटिव कूलिंग इसमें हो जाती है. बट अमोनिया एज अ फेज चेंज मटेरियल, आई विल नाउ डिस्कस आल्सो फेज चेंज मटेरियल क्या होता है. जब हम किसी वैक्सीन के लिए जाते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा जो हमारे होते हैं वो डायबिटिक वो इंजेक्शंस वगैरह इंसुलिन के होते हैं. जब भी आप जाते हो किसी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर के लिए हम जाते हैं एक मेडिकल शॉप में, वो हमें एक आइस पैक देता है, राइट. उस आइस पैक का क्या मतलब, कभी आपने ये सोचा है इसकी ब्यूटी क्या है आइस पैक की. सर हमें इंसुलिन हमेशा 8 डिग्री से लो टेम्परेचर पे स्टोर करना, राइट. एंड व्हाट डज दैट आइस पैक डू, आइस पैक उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा. वंस वी रीच आवर होम, मे बी फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 घंटे का रास्ता तय करना है, तो आइस क्यूब क्या करेगा, धीरे धीरे आइस से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में. सिंपल सा फंडा है, राइट. तो जब ये वाटर में वापस होगा ये हीट छोड़ेगा,
राइट, जो हमारे इंसोल में जब तक रहेगा उसके बाद क्या होगा, इट विल कंप्लीटली चेंज इनटू वाटर। जब हम वापस जाएंगे हम इसको वापस फ्रीजर में रखते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर इनटू आइस। सो दिस इज ए काइंड ऑफ ए टिपिकल फेज चेंज मटेरियल एग्जांपल। ऐसे ही फेज चेंज मटेरियल हमारे पास अब जो है बहुत सारे आ गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जहां पे हम इनको यूज करते हैं एनर्जी स्टोरेज। एक जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि दैट वी कैन यूज वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट इन काइंड ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज, बट आज ये चीज पॉसिबल है, आज एमोनिया में पॉसिबल है। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन न्यू थिंग्स जो मैं आपको बताऊं, ग्राफीन वगैरह, जो इस वक्त फेज चेंज मटेरियल हम यूज करते हैं उनको, एंड दे आर यूज्ड इन एज वेल एज इन हीटिंग एज वेल एज इन कोल्ड स्टोरेज। तो अभी तक दिस वाज अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन, आई थिंक इट्स ओके नेक्स्ट। So when we talk about rural development and cold storage, why? Since हमारी जो agriculture based जो सारी industry that is in rural areas, that is in villages, गाँव में सारा है, right? तो cold storage हमारा unfortunately कहाँ है? लस्सीपोरा में होगा, श्रीनगर में होगा, and this happens with other states as well. दिल्ली में cold storage जो है आजादपुर में, लेकिन जहाँ पे ये चीज उगता है, and इसी रीजन से प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज से हमारा क्या होता है, जो हमारा मेजर कुछ और क्रॉप्स है अपार्ट फ्रॉम apple, apricot, cherry, you use it for 3 days, they get rotten. क्योंकि उनमें सेंसी होता है कि जैसे आप उन फ्रूट्स को प्लग करते हो, निकालते हो, they need immediate pre-cooling. I'm not saying cooling, but at least they need an immediate pre-cooling. और वो pre-cooling कहाँ possible है? वो possible है आपके on form. एक होता है off form cold storage, एक होता है on form cold storage, right? अब मैं आपको एक critical example देता हूँ. Imagine, just imagine, imagination के लिए, क्योंकि you guys are going to be the next, scientists and next engineers. Now आपकी जो imagination level होनी चाहिए वो थोड़ी सी, different चीज में सोचनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले हम एक चीज सोच रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट में, इस ऑन फॉर्म कोल्ड स्टोरेज को हम कैसे बनाएं? हाउ इज इट पॉसिबल? किसी ने बोला जी जो आइसक्रीम कार्ट होती है जिसपे आपने जी काम किया, राइट, क्या हम वैसे यूज करें? बट देन देयर वाज अ प्रॉब्लम कि यार ये तो बड़ा छोटे लेवल पे बनेगा, वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। अब गांव से ले जाना है इसको शहर में, इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, अब ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो कोल्ड स्टोरेज में? जी बस वो बनाए जैसे होती है ट्रक्स वक्स, लेकिन इट विल बी ह्यूज कॉस्ट। सो वी वर थिंकिंग ऑफ ए लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज, क्या हम बना सकते हैं विच विल बी बेस्ड ऑन ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आपने पढ़ा होगा, राइट? ट्रैक्टर में कहाँ से पावर निकलता है? पीटी और शाबाश, गुड। जब भी मेरा ट्रैक्टर में यूज करता हूँ, इसकी ट्रॉली में यूज करता हूँ, गांव में वो क्या बोलते हैं उसको, सैंड में, उसमें सिल्ट में, राइट, क्या ये पॉसिबल है मैं एक ट्रॉली बेस्ड कोल्ड स्टोरेज बनाऊं? व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल? दैट विल बी एनर्जी बेस्ड, इज इट पॉसिबल? चैलेंज क्या है इसका? Source of energy for running the tractor or for running cold storage? For running cold storage, good. अब मैं 3 चीजें सोचता हूँ जो मेरे दिमाग में आती है। Number 1, can I use the PTO power? Number 2, can I use solar panels on top of that cooling chamber? या इससे भी different, can I use any phase change material? राइट, जो कनेक्ट होगा एक जनरेटर से या एक कंडेंसर से, राइट, जो फेज चेंज मटेरियल कम से कम मेरा 3-4 घंटे चलाए काम, सो दैट माय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गोज इनटू मार्केट। इज इट पॉसिबल? जब एक आइसक्रीम कार्ट वाला, वो कैसे आइसक्रीम करता है, वो कैसे हमें आइसक्रीम देता है दिन भर लाल चौक बैठ के, सोचा आपने कभी? उसमें फेज चेंज मटेरियल होता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रैक्टर बेस पर बनाएं? अभी तक क्यों नहीं बनाया? There is a possibility, right? And there is also a possibility of hybridization. Why, for example, आप बोलो कि सर लेकिन जब मेरा आपका एक कूलिंग चैम्बर बोलते हो कि ऑन फार्म में बैठा है, तब कैसे चलेगा वो? तब तो ट्रैक्टर थोड़ा ना हम 24 घंटे चलाएंगे, तब मेरा वो कोल्ड स्टोरेज चलेगा सोलर पैनल से, राइट? और जब मेरा ट्रांसपोर्टेशन में है, आधा पावर मेरा पीटीओ से जाएगा, आधा पावर जो है मैं ले लूंगा अपने फेज चेंज मटेरियल से, बिकॉज इन एनी वे व्हेन वी ट्रांसपोर्ट दिस काइंड ऑफ कमोडिटीज
It will not take more than 2-3 hours, right? Typically, इतना ही time होगा जो हमारा market है. Okay. So because of this post-harvest post-harvest technology हमारे पास available नहीं है proper. This has now have directly conquered into inflation. अगर आप कभी भी आप जाओगे market में आप देखोगे मटर is costing some around 200 rupees. Right? A simple mutton vegetable is costing 200 rupees per kg. Cost of all other grapes, everything is increasing. The reason is not transportation. Let me be very honest with you. The reason is never transportation. The reason is only cold storage. We do not have cold storage with us. And you know what? These type of cold storage do not need minus temperature. Just imagine, it just needs 2 to 10 to 12 degrees Celsius. जहाँ पे आपको पॉजिटिव टेम्परेचर चाहे उसके बावजूद भी we are not able to make these cold storage units. लस्सीपुरा में हमारे पास जैसे cold storage units, they are all or on traditional, they are not traditional electricity, right? So they cannot confine themselves to बस हम apple ले लेंगे because most of the cold जो वहाँ पे जमा होता है तो वो apple होता है जमा. But what happens to apricots? What happens to cherries? What happens to pear, plum? They all get wasted. If you will see a normal survey, 40% of our horticulture produce gets wasted, and 40% is a huge amount. It's not 1, 2 or 3% जहाँ सोचते हैं okay, it's nominal, we will convert it into juices and कुछ करेंगे वो jams, that's okay. But 40% is a huge task. 40% is not a joke. So जब हमारा 40% loss हो रहा है अभी हमारे agriculture sector में, तो only thing जो इसको हमें बचा सकता है that is use of renewable energy. And हमारे पास जब ऊपर वाले ने हमें इतनी अच्छी रहमत से नवाजा है कि आप you just see मतलब how we work. हम क्या करते हैं काट रहे हैं प्रूनिंग कर रहे हैं अभी अक्टूबर नवंबर हम सब लोग उसको हम जलाते हैं बट करना ऐसा सीन राइट उस सीन तुम सीन करा इस पर कांगरे में यहाँ उसमें और खुद भी जो है हाथ जो है सीखते हैं और जो हमारी बुखारी चलती है वो किस पे चलती है कोल पे सो कोल जाना है इसका बाहर से Just a simple thing जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया if we would have just converted these into biomass briquettes हमारे पास तो अपना रिसोर्स अवेलेबल है right and उसके बाद you just imagine the forest resources which is available with us the abundant forest resource huge मैं आपको बताऊं जो भी सर्वे में आपको एक मैप दिखाऊंगा अभी बायोमास मैप उसमें जो दिया गया है कि कितने मेगावाट ऑफ एनर्जी वी कैन जनरेट फ्रॉम बायोमास इज ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस only from agriculture. Horticulture हमारा huge है. If you will see from last 20 years, अगर J&K की economy को किसी ने sustain किया है वो 3 चीजें हैं. You should always remember this thing. It's not tourism, not tourism, not tourism. Number 1, horticulture. Number 2, handicrafts. Number 3, water resources. आप मुझे बताओ आपका जो फॉर एग्जांपल टूरिज्म भी है दैट इज कन्फाइंड टू सर्टेन पॉकेट्स राइट 12% नथिंग टू डू विद टूरिज्म व्हाट विल यू डू somebody in Kupwara somebody in Anantnag somebody in Kolgam what will you do पहलगाम गुलमर्ग सोनमर्ग श्रीनगर यही पॉकेट्स है ना हमारे और दूसरा होता है इनडायरेक्ट जो आप बोल रहे हो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिज्म बट जो मेन सस्टेनेबल हमारी इकोनॉमी है दैट इज हॉर्टिकल्चर अब इस हॉर्टिकल्चर को वी हैव टू डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट थिंग्स be it energy, be in cold storage, be it heating. So next is कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आप मुझे पूछ सकते हो ठीक है Now need of cold storage तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला because जो स्टोरेज लॉस होते हैं हमारे फ्रूट्स में owing to high temperature and humidity condition and इसमें हमें cold storage की जरूरत होती है then certain fruits they need modified cold storage चाहिए किसी को controlled atmosphere चाहिए बहुत सारे फ्रूट्स को तो वो भी हमारा जो है कोल्ड स्टोरेज ही दे सकता है एंड वर्स कम वर्स व्हेन हमारा फार्मर पूरे साल की मेहनत में जो है लास्ट पे उसको एप्पल प्रोडक्शन में मिलता है बिल्जी पर केजी आपको मिलता है 30-40 रुपीस एंड जस्ट इमेजिन 30-40 रुपीस ऑफ फार्मर इज गेटिंग एंड समबडी इज सेलिंग इट इन दिल्ली एट 200-300 रुपीस केजी इवन जो अभी नई वैरायटी आई है गाला वाला जो आई है जस्ट सी जो अप्रैल मई में जो हमारी वैरायटी अफगानिस्तान से आएगी वी आर गेटिंग इट एट 300-400 रुपीस वी आर पेइंग देम इजीली राइट पर जो हमारा गाला भी अभी हम जो बड़ा हम बोल रहे हैं वो भी 150 में ही बिक रहा है ना 2150 रीजन ये कि सबने एक साथ जी प्रोड्यूस किया सबको भेजना है तो हमारा जो कंपटीशन कम हो गया अगर मैं एटलीस्ट 40% ऑफ प्रोड्यूस अपना कोल्ड स्टोरेज में डालता एंड आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद बेचता सो इट वुड हैव फेचड मी गुड अमाउंट ऑफ मनी राइट सो मेरा ये एक्चुअली ज्यादा फोकस करने का कोल्ड स्टोरेज ये है कि दिस कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी कैन बी अ बूम टू जम्मू एंड कश्मीर
if we are able to make even small kind of cold storage units at our place, own places, this can be a game changer. This can be a game changer to our economy. This can be a game changer to horticulture. So now फिर से वही प्रॉब्लम. अब कोल्ड स्टोरेज तो ठीक हमें आया समझी नहीं, हमें कोल्ड स्टोरेज चलाना है. अब कोल्ड स्टोरेज रन के लिए we need electricity, right? As I told you already, जहाँ जिस place के we do not have electricity for our own consumption. So it is futile even to imagine how will those kind of cold storage run on electricity. So the best thing, अब आपको मुझे लगता है समझ आया होगा, will be renewable energy based cold storage units. So अब हमारे पास जो है 3 important टेक्नोलॉजी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने. नंबर 1 सोलर फोटोवोल्टिक, नंबर 2 सोलर थर्मल, नंबर 3 बायोमास. आपको मैंने इससे पहले भी बोला कि देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल जियोथर्मल, व्हिच कैन बी अ गेम चेंजर. फॉर एग्जांपल इन लद्दाख एरिया, लद्दाख में जो पूगा वैली वगैरह है वहाँ पे बड़ा अच्छा जियोथर्मल है, बट नॉट सस्टेनेबल टू आवर पार्ट. Comes to wind energy, may be a good technology in terms of areas like Riasi, high altitude areas, but not in our playing area. ठीक है? So I will not discuss OTED technology, the good technology, but hydroelectricity को मैं direct नहीं कर सकता हूँ use as a heating, cooling या अपने cold storage में. So I will discuss these 3 technologies: photovoltaic, thermal, and biomass. So when I discuss solar energy. Now, maybe some of you must be knowing, and some guys, they will be really surprised with one thing. अब आप मुझे ये बताओ, what do you think? What is the scope of solar photovoltaic in J&K? कितने लोगों ने घर में लगाया photovoltaic? सब लोगों ने लगाया, right? आपका वोल्टेज अच्छा से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, right? I am also using a solar photovoltaic unit of 1 kilowatt, I think since 2011. तो अभी तक वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है. अब फोटोवोल्टेइक का आप यूज किस में करते हो? फॉर चार्जिंग बैट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब आप मुझे ये बताओ सोलर थर्मल का क्या स्कोप है? हीटिंग ना. तो सोलर थर्मल को अगर मैं यहाँ पे आपके डिश में लगाया नहीं, GMC में लगाया, स्किम्स में लगाया. Some times back, स्किम्स के डायरेक्टर, we had an interaction, तो he gave me a call, he told me हमारे वाटर हीटर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा, मैं कोई बंदा यहाँ का है, इसको थोड़ा बताइए क्या इशू है. I will tell you. अब मुझे बताओ थर्मल अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ वाटर हीटर्स, वो कैसे लगेंगे यहाँ पे, चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बहुत सा गलत सा आंसर बताओ, एक बहुत जो दूसरे को लगे ना बड़ा फजूल आंसर इसने दिया है. आई जस्ट वांट दैट ऑनेस्टली, क्योंकि जब तक हम आपस में बात करेंगे तब तक वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो आई जस्ट वांट ऑल यू टू स्पीक अप, बिकॉज लेक्चर नॉर्मली क्या होता है, कोई बाहर से आया लेक्चर देके चला गया, राइट? बट आई जस्ट वांट कि पूरी इस 1 या 2 घंटे में जब हम बैठे हैं, अगर हमारे बीच एक पॉइंट भी अच्छे से डिस्कस हो पाए, आई थिंक वो वर्थ है, रादर देन आई एम जस्ट गिविंग ए लेक्चर इन इंग्लिश, आप सुन के फिर वो कोई मतलब नहीं बनता. अब आप मुझे फिर से बताओ, J&K में अगर मैं सोलर वाटर हीटर यूज करूं, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, नहीं चलेगा. ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? 6 months to temperature down. 6 months हमारा टेम्परेचर डाउन है. वेरी गुड, वेरी नाइस. 6 मंथ चलेगा? 6 मंथ चलेगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर. और नेक्स्ट कोई ऐसा इंसान जो ये सोच सकता है आउट ऑफ दिस ब्लू, अरे नहीं तब भी चलेगा विंटर में. होता है ना स्नो कवर की वजह से, हां, जो हमारा सेकेंडरी रिफ्लेक्शन होती है ना स्नो कवर की वजह से, उससे तो चल सकता है अच्छे से. स्नोफॉल कितने दिन होगा? लेकिन 3 महीने तो होगा नहीं स्नोफॉल ना. फिर से कोई सोच, जस्ट आई वांट समबडी टू थिंक आउट ऑफ ब्लू. आपको पता है जब सोलर रेडिएशन आती है, राइट, वो जो टेरेस्ट्रियल यानी कि हमारे लैंड पे पड़ती है, वो पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस, GHI, रेडियंस, इंसोलेशन जो भी है, राइट? दैट इज द टोटल एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन. ठीक है, अब मैं आपको ले चलूंगा थोड़ा स्पेक्ट्रम की तरफ. आपको पता है वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी सबको पता है,
यू नो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ जो हमारी जो है रेज हैं, लाइट रेज हैं, जो डायरेक्ट भी चलती है और इनडायरेक्ट भी चलती है, ठीक। कुछ हमारे पास जो है कुछ रेडिएशन है जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, जो तो है डिफ्यूज। डायरेक्ट में क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रेज या बाकी जो है इंफ्रारेड वगैरह जो है, वो क्या करती है, वो रेज जो आपको कोई भी उसमें कोई भी ओपेसिटी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट पड़ेंगी लैंड पे, राइट, यहाँ तक ठीक है। वो बाकी जो रेडिएशन है वो डिफ्यूज रेडिएशन। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, लद्दाख, लद्दाख जैसा एरिया, चेन्नई जैसा एरिया, राजस्थान जैसा एरिया, छोड़ो राजस्थान और चेन्नई, मुझे सोलर थर्मल लगाना है, मैं कहाँ लगाऊंगा? और इससे वेरी सिंपल यार, क्वेश्चन तो बहुत वो वाला क्वेश्चन है यार, आप लोग बड़ा वो क्यों सोच रहे हो? मैंने आपको 2 वर्ष एग्जाम्पल दी ना, राजस्थान में और लद्दाख में सोलर थर्मल पावर लद्दाख मिलेगी। कौन को बोल लद्दाख मिलेगी, क्यों? इंटेंसिटी ज्यादा होगी सर सोलर रेडिएशन। किस इंटेंसिटी, व्हाट टर्म्स? मे बी सर लद्दाख हाइट पे उससे थोड़ा, उससे क्या हो, जितना ऊपर जाएगा इंसान कूल रेट से यार हमें नहीं सुना है कि हायर यू कूल रेट इज, राइट, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? चेन्नई और लद्दाख, गुड। सी जब मैंने मेरा क्वेश्चन सुना था, सिर्फ क्वेश्चन में 2 चीज सुनी होंगी, वो है लद्दाख और चेन्नई, लद्दाख और राजस्थान। आपने 2 इंपॉर्टेंट चीजें नहीं सुनी। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर मैं सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाऊंगा, पहले मैंने वो यूज किया थर्मल, राइट, सेकंड मैंने यूज किया कि ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। आंसर इसका ये है कि मोस्ट एफिशिएंट जो है पावर प्लांट मेरा लद्दाख में लगेगा। रीजन क्या है, हाइब्रिड रेडिएशन जो आती है, आपको याद है टाइम्स रिकॉर्ड हो रहा है क्या? एक बार वो दे दी मुझे एग्जांपल्स। ओके, टाइम्स नाउ पे बहुत टाइम पहले एक डिबेट हुआ था कि कश्मीरियों की जो गाय वो लाल क्यों है? यू रिमेंबर दैट? यस सर। क्यों है लाल? साइंस क्या है इसमें? पिगमेंट सब वैसा ही, पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट तो हो जाता है यूरो की वजह से it is because we have more direct radiation than diffuse radiation. देखो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस जो है राजस्थान में ज्यादा है, चेन्नई में ज्यादा है, लद्दाख में बहुत कम है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलो या ये बोलो डिफ्यूज रेडिएशन, इन दो को जब मैं प्लस करता हूं दैट इज ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, राइट। उसमें उस केस में डीएनआई जो है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस या रेडिएशन वो लद्दाख में ज्यादा है, वो कश्मीर में ज्यादा है। अब मैं आपको एक और टिपिकल एग्जांपल दूंगा। स्नोफॉल हो रही है, राइट, बड़ी ठंड होती है। स्नोफॉल के बाद आप देखो धूप निकलती है, थोड़ी सी धूप निकलती है, व्हाट हैपेंस? आपने कभी सोचा है, बड़ा वो अजीब सा लगता है ना, चमक सी लगती है, इंसान लगता है इरिटेशन सी होती है, राइट। व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सो टिपिकली थिंकिंग सोलर थर्मल एनर्जी का जो स्कोप बहुत ज्यादा है। अब योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सर फिर ये टेक्नोलॉजी जो हमें लगाई ये जीएमसी में वहां पे ये क्यों नहीं चली, ये क्यों नहीं उतना अच्छे से गर्म करता है? रीजन इज चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। सोलर थर्मल में बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे दैट इज चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, एक सोलर जो होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर। एक एग्जांपल देता हूं, बचपन में पेपर का पत्ता, राइट, उस पे मैं डालता था वो शीशा, वो जलता था, क्यों? दैट इज कंसंट्रेटेड सोलर पावर। और उस कंसंट्रेशन से अगर आप देखोगे वहां पे छू होगी वो गर्म होता था, राइट राइट। अब उसी टेक्नोलॉजी को दिमाग में रख के चलो और सोचो, अगर मेरे पास एक सनलाइट, एक रिसीवर है ऐसे जहां सनलाइट डाल के, ठीक है, वो एक एब्जॉर्ब एक रिसीवर पे पड़ रही है जो मेरा मानो गिलास का बना है, एल्यूमिनियम फॉइल का बना है, उसके अपोजिट में एक रिसीवर रखता हूं पेपर, ठीक है, एक छोटा सा एब्जॉर्बर रखता हूं, कितना टेम्परेचर मैनीफोल्ड इंक्रीज होगा? अगर मेरा इनकमिंग टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस है, एट लीस्ट 3 to 4 टाइम जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसी फंडे के साथ, उसी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सोलर जो है थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं पूरी कंट्री में। दिस इज अ सिंपल फिनोमेना। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है।
सी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा उस लैंग्वेज में, सो दैट आई होप इट्स ओके राइट विद यू. सो इफ देयर इज एनी इशू यू कैन जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं चाहता हूँ मोर टेक्निकलिटीज भाई आप समझो नहीं. ओके, अब प्रॉब्लम क्या है मेरा, अवेलेबिलिटी अब क्या है मेरा, सन दिन में अवेलेबल है, रात को नहीं है, सीजनल है, राइट. एंड देन देयर इज ओकेजनल वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी. क्या आपको ये बात पता है कि जब मेरा विंटर का टाइम आता है जो मेरा सोलर का एफिशिएंसी कम होता है, क्यों होता है कम? मुझे पता, आप जो आंसर बोलोगे गलत बोलोगे, हम पहले से बोलता हूँ. टेम्परेचर डाउन होता है. नेक्स्ट सर, जो विंटर्स में जब आता है अर्थ का सर रोटेशंस होता है ना, गुड सर वो ऐसे भी होता है. वेरी नाइस वेरी नाइस. वो भी सर है. उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन एंगल, दैट इज समथिंग लाइक 5 डिग्री. ठीक है, टेम्परेचर कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं है प्रॉब्लम? यार वी आर गोइंग टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट हैज टेम्परेचर टू डू विद इट? लाइट आवर्स कम. लाइट आवर्स कम है ओके, सनशाइन आवर्स कम है दैट्स ओके, बट माय पॉइंट इज दैट हमें लाइट को करना है कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिसिटी ओनली, राइट. सो टेम्परेचर से कोई वास्ता नहीं है ना, एटलीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, है ना. एम्बिएंट टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एम्बिएंट टेम्परेचर आपका कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल इट विल बी कन्वर्टिंग योर लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये बोलना कि हमारा विंटर में इसलिए कम है वो रीजन नहीं है. रीजन ये हो सकता है कि हमें सनशाइन आवर कम मिले, और वो भी मैं आपको डिफरेंट स्लाइड्स में बोलूंगा कि क्या अजीब सा सिस्टम जो मैं शायद पहले सुना भी नहीं होगा. ओके, नाउ अगर हमें सोलर एनर्जी को यूज करना है, वी नीड सोलर स्टोरेज, वी नीड स्टोरेज डिवाइसेस, राइट. और वो स्टोरेज डिवाइसेस जो है, या तो स्टोरेज सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा या हमें चेंज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा सोलर कलेक्शन एरिया. ठीक, एंड देन वी आल्सो नीड सम ऑक्सिलरी बैकअप, चाहे वो बैटरी बैकअप हो, वो जो है हमारा थर्मल स्टोरेज हो, वो चाहे हीटिंग या कोल्ड में जो है कोई हम ऐसा सिस्टम चलाए, लूप चलाए जो हमारा एनर्जी स्टोरेज करे. आपको ब्रेक तो नहीं चाहिए? एक बीच में हम एक ब्रेक करेंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू 2 आवर्स लेक्चर. सो आप मुझे बताओ कितने बजे को ब्रेक चाहिए पहले? कितने बजे? खुद आएगा ना. ओके, सो जैसे इन्होंने बोला कि देयर इज चेंज ऑफ इंसिडेंस एंगल इन विंटर. ठीक है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इज इफेक्टिंग आवर सोलर थर्मल जनरेशन एंड इवन फोटोवोल्टिक भी. एंड देन you know we have to follow sun's apparent movement, यानी कि अगर हमारा sun rises in the east, sun sets in the west, right. जब मेरा sun यहाँ से चल के यहाँ चलता है, that means जो मेरा ये absorber है, जो मेरा ये reflector है, ये भी इसी जो है इसी में चलना चाहिए. उसको हम बोलते हैं rotating axis. ठीक है, कुछ सोलर थर्मल जो है हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, वो होते हैं सिंगल ट्रैक एक्सिस और कुछ होते हैं डबल ट्रैक एक्सिस. सिंगल ट्रैक एक्सिस वो वाले हैं जो खाली एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. सन ये यहाँ से सोलर थर्मल मेरा पावर प्लांट जो है रोटेट कर रहा है, सिंगल एक्सिस. डबल एक्सिस जो है, जैसे ये बोल रहे थे कि विंटर में हमारा डिक्लिनेशन एंगल गोज टू 5 डिग्रीज. ठीक है, तो वो डबल एक्सिस जो है वो ऊपर नीचे भी कर सकता है, राइट. सो दैट इज डबल एक्सिस. उसके बाद अब यूटिलाइजेशन की तरफ दो टेक्नोलॉजी है हमारे पास. एक है मेरा डायरेक्ट कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, दूसरा है मेरा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी. सोलर जो मेरा है वो फोटोवोल्टिक, वो आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी टू लाइटिंग, वाटर पंपिंग कर सकते हो, चार्जिंग, फैन, टीवी जो भी है. और मेरा जो थर्मल रूट है वो है मेरा कलेक्शन डिवाइस होते हैं व्हिच कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू हीट एंड यूज थर्मल एनर्जी. यानी कि अगर मुझे हीटिंग करनी है, कुकिंग करनी है, स्पेस हीटिंग करनी है, स्पेस कूलिंग करनी है, ड्राइंग करना है, डिस्टिलेशन करना है, रेफ्रिजरेशन करना है, प्रोसेस हीटिंग करनी है, उसके लिए थर्मल रूट बेस्ट है. ठीक है, यानी कि आज आपने एक चीज ये समझा कि जहां भी मुझे हीटिंग, कूलिंग, डिस्टिलेशन, कुकिंग, इवन स्पेस हीटिंग आप समझ रहे हो ना, है सिस्टम जो होता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसके लिए सोलर थर्मल बेस्ट है. फोटोवोल्टेइक इज ओनली यूजफुल फॉर डायरेक्ट कन्वर्जन एक्सिस. ठीक, नाउ ये आपको मैंने ज़बानी ऐसे समझाया कि मेरी जो सोलर रेडिएशन आएगी, बोथ बीम रेडिएशन जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं और डिफ्यूज रेडिएशन होती है. ठीक है, वो पड़ेगी एब्जॉर्बर पे. एब्जॉर्बर पे जब वो पड़ेगी तो मेरा टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज.
जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अगर मुझे टेक्नोलॉजी कोई भी चलानी है वो डिपेंड करेगा मेरा यूटिलाइजेशन किस टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जांपल, इफ आई विल नीड अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस, आई विल नीड a 120 डिग्री सेल्सियस, आई नीड a टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल टेम्परेचर गेन के लिए आई विल यूज वाटर एज अ मीडियम, बिकॉज वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री अगर मुझे अटेन करना है किसी हीटिंग के लिए तो मेरा सबसे सस्ता टेक्नोलॉजी है वाटर वाला यूज करना। ठीक, इन केस मुझे टेम्परेचर मैनीफोल्ड चाहिए, 240 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मैं यूज करूंगा सिंथेटिक ऑयल। यहाँ बहुत से हमारे जो हैं स्टोरेज यूनिट्स आते हैं, बहुत से हैं ऑयल जो है इनका जो सर्कुलेशन होता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन, बहुत हीट जनरेट करते हैं ये। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने बोला सिंथेटिक ऑयल। उसके बाद हमारा जो है हीट लॉस जो होता है एब्जॉर्बर से। अब हीट लॉस कब होगा एब्जॉर्बर से? वो तब होगा जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। समझे आप? एग्जांपल, ये मेरी माइक है, इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये सराउंडिंग है, इसका 50 डिग्री सेल्सियस। लॉस ऑफ टेम्परेचर कहाँ से कहाँ होगा? माइक से, राइट, एब्जॉर्बर से सराउंडिंग की तरफ। अब जो यूटिलाइजेशन जो है, अब हीट लॉस जो है ये कहाँ से होगा? ये होगा 3 रूपों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये आपको पता होगा ये 3 प्रोसेसेस। तो ओके, तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके बाद उसमें मैं आपको समझाऊंगा सोलर बायोमास कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एक ही टाइम, कैसे बिजली भी जनरेट करेगा और कैसे कूलिंग भी करेगा, और क्या वो मॉडल हम अडॉप्ट कर सकते हैं किसी फार फ्लंग एरिया जो हमारा JNK है किसी भी कंट्री में। So I think that will be a different kind of experience for you all. So we will join after 10 minutes. कैलकुलेट आप यहाँ नहीं करें, ये जो हीट जनरेशन जी, जी। थोड़ा सा मतलब आप करेंगे ये स्लाइड हाँ, okay. तो प्रैक्टिकली थोड़ा ज़हन में आ गए, हाउ डू वी डू एग्जैक्टली, कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? Actually उसके बाद जो स्लाइड है वो प्रैक्टिकल वाली है, उसमें पूरा मैं आपको दिखाऊंगा वर्किंग फ्लूइड कैसे काम करता है, एब्जॉर्बेंट कैसे काम करता है, हाउ वी यूज ए रेक्टिफायर जो है, फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया यूज करूंगा इनको वो कैसे यूज करेगा, सिंथेटिक ऑयल कैसे यूज करेगा, वो उसकी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई वुड लाइक आप पहले चाय पियो आराम से, तो उसके बाद वी विल, हां ये तो वही बोले ना, तो बोले अभी चाय आ रहा है, पता नहीं अभी आएगा अभी। इसका नाम किसने बोला ना, ये 10 मिनट सर ये हां एक बार इसका नाम क्या नाम इसका, किसने बोला ना, फिर वेट करो। दिलावर अच्छा है, दिलावर हाँ बाहर ही इसने बोला ना वेट करो कुछ टाइम। बढ़िया, आप कब आए वहाँ से? आप हो गए? आप भाई बंद करना है। अच्छा, ये लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है कहीं किस पे? YouTube channel. वेट करें कुछ में कंटिन्यू करो। ओके